Good morning, student. In this lecture, we will discuss about what is legislature, which is the chapter 5th of class 11th subject political science. In previous classes, we have discussed in brief what is the legislature. Organ which makes the law, which legislate a law, is called a legislature. Now, in India, Parliament is the body which makes the law, and in Parliament there are two houses plus president, Lok Sabha, Rajya Sabha plus president. These three collectively are called Parliament, and it is a law making body. Bill Any bill will be passed after a bill being passed from both house of the Parliament. They will get assent by the president. Now that bill will become law. So let's start. Legislature is not merely a lawmaking body. Lawmaking is but one of the function of the legislature. In first paragraph, author wants to say that even though the Parliament main function is to make law, but Parliament का काम सिर्फ यही नहीं है कि वो law बनाए. पार्लियामेंट के कई काम हो सकते हैं, जैसे कि वी नो दैट current government is a BJP government because BJP has been able to form majority in the Lok Sabha. BJP government was able to win majority seats of the Lok Sabha so in return they forms the government, and opposition is being occupied by the second largest party which has won most of seats after the BJP. So all other parties comes in the opposition. So हमें पता है कि ओपोजिशन हमेशा क्रिटिसाइज और करंट गवर्नमेंट से सवाल जब पूछते हैं कि आपने, जैसे कि कोरोना वायरस में केस बढ़ रहे हैं, तो ओपोजिशन उनसे क्वेश्चन पूछती हैं भी करंट गवर्नमेंट काम कैसे कर रहे हैं, आप कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और आप काम कैसे कर रहे हो. प्लस दे क्रिटिसाइज अबाउट ऑल द पॉलिसीज ऑफ द करंट गवर्नमेंट. फॉर एग्जांपल अभी चाइना ने 20 सोल्जर अपने इंडियन सोल्जर को मारा था, तो उन्होंने बोला था कि ऐसे क्या कर रहे हो आप, और चाइना को एक सही से सबक क्यों नहीं सिखा पा रहे. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो ऑपोजिशन बेसिकली पूछती रहती है करंट गवर्नमेंट से. सो दिस ऑल आर थिंग्स बीन आस्क्ड इन द पार्लियामेंट इटसेल्फ. सो पार्लियामेंट इज नॉट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी. इन दिस opposition basically put questions to the current government and ask various questions from them. So parliament has some wide and diverse so basically they are having some diverse functions. Yet in most democracy, legislature are losing central place to the executive. In India too, the cabinet initiate policies, sets the agenda for the governance and carry them through this. This has led some critics to remark that parliament has declined. अब जैसे कि हमें पता है कि समझ लो जैसे बीजेपी के सबसे ज़्यादा सीटें आई लोकसभा में, मान लो 300 सीटें बीजेपी की आई, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना दी. अब उनमें से एक प्राइम मिनिस्टर बनेगा और प्राइम मिनिस्टर सारे कैबिनेट बनाएंगे, जैसे कि हेल्थ मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर. तो ये एक तरह की सारी मिनिस्ट्री एंड प्लस गवर्नमेंट रनिंग इज बीन रन बाय द पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ वॉन द मेजर सीट्स. सो पार्लियामेंट की रेवलेंस थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव ही सारा कुछ एक तरह का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन प्लस सारा काम तो एक एग्जीक्यूटिव ही करता जा रहा है. अब वी कैन सपोज दैट, आप सोच सकते हैं कि अगर लोकसभा में ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, अब जैसे अगर सपोज 500 सीटें हैं और उसमें से 400 सीटें तो एक ही पार्टी जीत गई, तो अगर स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं है तो करंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन कौन पूछेगा, कोई भी नहीं. इसलिए पार्लियामेंट की रेवलेंस ये कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत कम होती जा रही है, डिक्लाइन होती जा रही है. बट अगर पार्लियामेंट में स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन बैठी होगी, अच्छे लीडर बैठे होंगे, तो वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते रहेंगे करंट गवर्नमेंट से, उनसे उनकी अकाउंटेबिलिटी चेक करते रहेंगे. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट. दिस इज एग्जाम्पल, सो वी नॉट हैव टू स्टडी दिस. Why do we need two houses of parliament? As I've discussed already that parliament has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha plus president. The term parliament refers to the national legislature. National legislature का मतलब ये कानून बनाते हैं पूरे इंडिया के लिए, पूरे नेशन के लिए. The legislature of the state is described as a state legislature. So state government लॉज आर ऑल्सो मेड फॉर द स्टेट बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. सो जैसे कि विधानसभा हो गई, तो हर स्टेट की अपनी की विधानसभा होती है, उसे बोलते हैं स्टेट लेजिस्लेचर. लेजिस्लेचर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉ फॉर द स्टेट्स. द पार्लियामेंट इन इंडिया हैज़ टू हाउसेज. व्हेन देयर आर टू हाउसेज ऑफ पार लेजिस्लेचर इट इज़ कॉल्ड बाइकैमरल लेजिस्लेचर. सो इंडिया की बाइकैमरल लेजिस्लेचर है क्योंकि उसमें दो हाउस है, लोकसभा और राज्यसभा. द टू हाउसेज ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्स आर
काउंसिल ऑफ स्टेट्स और राज्यसभा एंड हाउसेज ऑफ पीपल और द लोकसभा। अब जो राज्यसभा है उसको काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोलते हैं। अब इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स क्यों बोलते हैं हम बाद में पढ़ेंगे। एंड हाउसेस ऑफ पीपल एक अलग हाउस होता है, उसे बोलते हैं हाउसेस ऑफ पीपल, जो कि होता है लोकसभा। इसे अब लोकसभा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी मेंबर होते हैं लोकसभा के उसको डायरेक्टली इंडियन सिटीजन इलेक्ट करते हैं जिनकी 18 साल से उम्र ऊपर होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हाउसेस ऑफ द पीपल, लोकसभा। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द स्टेट्स टू ऑप्शन एस्टेब्लिशिंग एदर यूनिकैमरल एंड बाईकैमरल लेजिस्लेचर। अब जो स्टेट होती हैं उनकी भी विधानसभा होती हैं जिन्हें हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। एंड कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान ने हर स्टेट को एक राइट दे रखा है कि वो भी बाईकैमरल, 2 हाउसेस भी हो सकते हैं स्टेट में, प्लस यूनिकैमरल सिर्फ एक हाउस भी हो सकता है। तो ये स्टेट की खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एट प्रेजेंट जैसे कि हमें पता 29 से 30 स्टेट्स हैं इंडिया में, उनमें से सिर्फ 6 स्टेट ऐसी हैं जिनकी बाईकैमरल लेजिस्लेचर है, यानी कि 2 हाउसेस हैं। फर्स्ट हाउस इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अनदर हाउस इज कॉल्ड बाय द नेम लेजिस्लेटिव काउंसिल। नाउ लेट्स मूव टू अनदर। और जो 6 स्टेट हैं जिनके पास 2 हाउसेस हैं वो आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना एंड यूपी। So countries with a large size and much diversity usually prefer to have 2 houses of the national legislature to give representation to the all section in the society and to give representation to the all geographical region or the parts of the country। अब जैसे कि लोकसभा है जिसमें सिर्फ सीधा लोग 18 साल से ऊपर होते हैं, वो चुनते हैं अपने रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिन्हें हम बोलते हैं एमपी। अब जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने सोचा था कि सेंटर में हमेशा 2 सभा होनी चाहिए, जैसे कि लोकसभा एंड राज्यसभा, ताकि हर सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी लाइक हिंदू, सिख एंड इन कास्ट वाइज वी कैन से SC ST OBC जर्नल, ताकि हर एक हिस्से का रिप्रेजेंटेटिव, कोई उनका रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव उस पार्लियामेंट का पार्ट हो सके, क्योंकि पार्लियामेंट इज़ मेंट टू मेक लॉज फॉर होल इंडिया, प्लस दे आर मेकिंग रूल्स एंड लॉ फॉर ईच एंड सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी। सो बेसिकली ये रैशनैलिटी थी कि क्यों 2 हाउसेस होने चाहिए। द ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर हैज़ वन मोर एडवांटेज। ए बाईकैमरल लेजिस्लेचर मेक इट्स पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकन्सिडर्ड। अब ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, जो हमें भी पता, अगर कोई भी कानून बनने के लिए पहले बिल आएगा, अगर सिर्फ एक ही सभा हो तो फिर तो बिल बनना बहुत आसान हो जाएगा ना। तो इसलिए अगर 2 सभा होंगी जैसे लोकसभा एंड राज्यसभा, सबसे पहले बिल पहले एक हाउस में पास होगा, फिर वो सेकंड हाउस में जाएगा। तो इसलिए उस बिल या कोई भी रूल है या लॉ है उसको पूरे ध्यान से पढ़ा जाएगा, इसलिए कोई इल मैनर्ड लॉ पास नहीं होंगे। एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू अदर हाउस फॉर दिस डिसीजन। फॉर एग्जांपल एक डिसीजन ले लिया गया था लोकसभा में और सभी मेंबर ने उसको पास कर दिया, बट राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनको वो अच्छा नहीं लगा बिल, तो वो पास नहीं करेंगे। अब अगर वो पास ही नहीं करेंगे तो बिल तो दोनों हाउस से पास होना ज़रूरी है ना। अगर वो पास ही नहीं करेंगे तो वो बिल वहीं ख़त्म हो जाएगा, वो रूल लॉ वहीं ख़त्म हो जाएगा। दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। इवन इफ वन हाउस टेक अ डिसीजन इन हास्ट, द डिसीजन विल कम फॉर डिस्कशन इन द अदर हाउस एंड रिकन्सिडरेशन विल बी ऑल पॉसिबल। तो ये वही बात है, हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा के बारे में। ईच ऑफ द 2 हाउस ऑफ द पार्लियामेंट डिफरेंट बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। द राज्यसभा रिप्रेजेंट द स्टेट्स ऑफ इंडिया। अब राज्य का हमें मतलब पता है कि स्टेट होता है, तो राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है? लोकसभा जैसे कि पीपल ऑफ द इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, तो राज्यसभा रिप्रेजेंट करेगी जितने भी इंडिया की स्टेट्स हैं उनको। इट इज़ इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। लोकसभा हमने बोला था डायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी है जहाँ पे लोग खुद वोट डालते हैं, पर राज्यसभा में लोग वोट नहीं डालते। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा, दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। Resident of the state legislative assembly, the elected member of the state legislative assembly in turn elect the member of Rajya Sabha। हम जैसे हमें पता जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है स्टेट की विधानसभा, उसमें उस स्टेट के बंदे जो कि 18 साल से ऊपर होते हैं वो वोट डालते हैं। अब जिन्हें हम बोलते हैं MLAs, अब वो MLAs ही वोट डालेंगे और अपने रिस्पेक्टिव एरिया के राज्यसभा मेंबरों को इलेक्ट करेंगे। So these are indirectly elected. Peoples are not taking part in the election of the Rajya Sabha। अब जैसे कि रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में, जहाँ तो सपोज कर लो राज्यसभा में 250 मेंबर है, अब हर स्टेट से कुछ ना कुछ मेंबर आएंगे। अब एक तो हो सकता है कि सभी स्टेट से जैसे एक इक्वल नंबर्स ऑफ मेंबर्स आएँ, जैसे कि नागालैंड की पॉपुलेशन बहुत कम है और पंजाब की उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है, बट दोनों स्टेट से 2-2 राज्यसभा के मेंबर चुन के बैठेंगे राज्यसभा में, जो कि दिल्ली में
सिचुएटेड है। एक तो ये मेथड हो गया, और एक मेथड ये हो गया कि अगर पंजाब की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ से ज़्यादा राज्यसभा के मेंबर आएंगे, और नागालैंड की पॉपुलेशन कम है तो वहाँ से कम आएंगे। एक तो ये मेथड हो गया। तो इंडिया में सेकंड मेथड अपनाया जाता है। डिपेंडिंग ऑन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, राज्यसभा के मेंबर उतने ही वहाँ से आएंगे। नंबर ऑफ द राज्यसभा मेंबर्स विल कमिंग फ्रॉम दैट स्टेट विल बी मोर कंपेयर टू द नंबर ऑफ द राज्यसभा कमिंग फ्रॉम द स्मॉलर स्टेट। सो अगर यूएसए की बात करें तो वहाँ हर स्टेट में इक्वल रिप्रेजेंटेशन होती है। सेनेट जो कि वहाँ की लॉ मेकिंग बॉडी है, जैसे इंडिया में पार्लियामेंट होगी। तो जो यूएसए की बात अलग है। यूएसए में ये होता है कि जैसे कि 50 स्टेट से बना हुआ यूएसए, तो हर स्टेट में से बराबर के राज्यसभा मेंबर चुन के आ रहे हैं। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। तो इंडिया में राज्यसभा के मेंबर कैसे आएंगे, कितने नंबर में आएंगे, जैसे पंजाब में कितने आएंगे, यूपी में ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा आएंगे क्योंकि यूपी की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो ये सारा कैसे होंगे, एक शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जैसे कि 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इंडिया के जो 4th शेड्यूल है संविधान का, वहाँ पे दे रखा कि हर स्टेट से राज्यसभा के मेंबर कितने कितने आएंगे, व्हाट वुड हैपन। अब एक एग्जांपल देने की बात किया ऑथर ने। इन्होंने बोला है अगर राज्यसभा में सारे मेंबर राज्यसभा के मतलब हर स्टेट से एक ही तरह के राज्यसभा के मेंबर आ रहे हैं, तो यूपी में जिसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा है और सिक्किम जिसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उन दोनों में से स्टेटों में से एक ही नंबर के राज्यसभा मेंबर चुन के आ रहे होते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अगर 10 मेंबर चुन के आ रहे हैं यूपी से, तो उतने ही सिक्किम से आएंगे, 10 सिक्किम से और 10 यूपी से। पर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया अपने इंडिया का, उन्होंने ऐसा नहीं करना चाहा, और इसलिए यूपी जैसी स्टेट जो कि एक बहुत बड़ी स्टेट है, वहाँ से 31 मेंबर आएंगे राज्यसभा में बैठने के लिए, दिल्ली में जो सिचुएटेड है। और सिक्किम जो कि एक बहुत छोटी स्टेट है, वहाँ से सिर्फ एक राज्यसभा का मेंबर चुनकर आएगा। अब ये राज्यसभा के मेंबर चुनता कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट इलेक्टिसिटी असेंबली ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर द टर्म ऑफ 6 ईयर, ये 6 साल के लिए चुने जाते हैं। दे गेट एंड दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर द री इलेक्शन। Every 2 years, 1/3 of the members of the Rajya Sabha complete the terms and election are held for those 1/3 seat only. Thus the Rajya Sabha is never dissolved. So ये एक तरह का परमानेंट हाउस है राज्य सभा। इसमें 6 साल के लिए चुना जाता है, और एक तरह का ये डिसॉल्व नहीं होता। लोकसभा हमेशा डिसॉल्व हो जाता है। क्यों? क्योंकि लोकसभा में हर 5 साल बाद चुनाव कराना पड़ता है, जहाँ पूरे इंडिया के लोग पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी 18 साल से उम्र एज हाई है, ऊपर है। सो दिस इज़ कॉल्ड द परमानेंट हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया, हर स्टेट से नंबर्स ऑफ द राज्यसभा चुने जाते हैं और राज्यसभा में बैठते हैं, पर 12 मेंबर ऐसे होते हैं जिनको सीधा डायरेक्ट प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देता है। अब वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करेगा इस 12 मेंबर को, जो डायरेक्टली, उनको कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं है डायरेक्ट इलेक्शन की, वो सीधा राज्यसभा में बैठेंगे। वो 12 मेंबर कैसे होने चाहिए? दे शुड बी एक्सीलेंट इन द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट एंड सोशल सर्विस। अब 12 मेंबर ऐसे भी हो सकते हैं जो बहुत ही मतलब एक्सीलेंट होते हैं लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस। उन्हें प्रेसिडेंट सीधा नॉमिनेट कर देगा और उनको राज्यसभा में बैठने का मौका मिल जाएगा, ताकि वो भी एक इंडिया की लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले पाएँ। नाउ नेक्स्ट इज लोकसभा। अब नेक्स्ट हाउस पार्लियामेंट का लोकसभा है। अब लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, हर स्टेट की विधानसभा, वो और लोकसभा को डायरेक्टली चुनते हैं लोग फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। जैसे कि एक स्कूल में कितनी ही क्लासेस होती हैं, उनको डिवाइड किया जाता है, हर स्कूल का जो एरिया उसको क्लासेस में डिवाइड कर दिया जाता है। तो उसके लिए अगर लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं, एमपी के इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, तो पूरे इंडिया को छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है, और छोटे से हिस्से से उस छोटे से एरिया हिस्से के लोग एक वीकेंड से एक इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव को, जो उनको रिप्रेजेंट करता है, और वो बैठता है लोकसभा में दिल्ली में जाके। तो इसे बोलते हैं टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ रफली इक्वल पॉपुलेशन। हर वो छोटे छोटे एरिया का हिस्सा की पॉपुलेशन सेम होनी चाहिए। और यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का मतलब 18 साल से ऊपर जो उस एरिया में बिलोंग करता होगा बंदा, और जिसका वोटर कार्ड बना, वो वोट डाल सकता है और अपने पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकता है। और लोकसभा जनरली चुनी जाती है 5 साल के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट करती क्या है। तो सबसे पहला काम तो पार्लियामेंट का लॉ बनाना ही है, बट लॉ बनाने से पहले उस पर्टिकुलर बिल को ड्राफ्ट करना पड़ता है। वो ब्यूरोक्रेसी जो कि एक नौकरशाह है, उनका काम होता है कि वो
उस बिल को ड्राफ्ट करें और वो काम करते हैं पर्टिकुलर मिनिस्टर के अंडर। जैसे कोई हेल्थ रिलेटेड कोई भी कानून बनाना है और उसके लिए बिल ड्राफ्ट करेंगे ब्यूरोक्रेसी, वो कौन से मिनिस्टर के अंदर ये काम करेंगे? हेल्थ मिनिस्टर के अंदर। और कोई भी कानून बनाने के लिए पहले बिल लेके आना पड़ेगा, और बिल कोई भी लेके आ सकता है, बट जो कैबिनेट होता है, जो प्राइम मिनिस्टर ने चुने हुए हैं कैबिनेट मिनिस्टर, जो वो बिल लेके आते हैं, उसका पास होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमें भी पता है लोकसभा में अगर कोई बिल पास करना है तो मेजोरिटी से वो बिल को यस मिलनी चाहिए, और जिसकी सरकार होती है उसको यस मिल ही जाती है, क्योंकि वो ज़्यादातर सीटें जीत कर आए हैं। अब अगला इनका पार्लियामेंट का रोल हो गया कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड इंश्योरिंग इट्स अकाउंटेबिलिटी। अब जैसे कि एग्जीक्यूटिव में प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर आ जाते हैं, जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और पार्लियामेंट में ऑपोजिशन बैठे होती हैं। तो ऑपोजिशन बेसिकली आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव दैट हाउ गवर्नमेंट इज़ वर्किंग ऑन पर्टिकुलर एरिया। सो कंट्रोल, एक तरह का कंट्रोल रखता पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव पे, ताकि उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जवाब उनसे लें और उन पे एक तरह का चेक बना कर रखें। नाउ नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शन। गवर्नमेंट इज अबाउट स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन वेरियस मैटर। व्हाट डज मनी कम फ्रॉम? एवरी गवर्नमेंट रेजेस रिसोर्सेज टू टैक्सेशन। अब ये अपनी जो पार्लियामेंट है फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी भी चेक करती है एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, सभी अपने कैबिनेट मिनिस्टर कौन सी पॉलिसी पे कितना पैसा लगा रहे हैं और वो कैसे लगा रहे हैं, पार्लियामेंट को बताना बहुत ज़रूरी होता है। द फाइनेंशियल पावर ऑफ पार्लियामेंट इन्वॉल्व्स ग्रांट ऑफ सोर्सेज टू पार्लियामेंट गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट इट्स प्रोग्राम। अब जैसे कोई भी स्कीम है जो एग्जीक्यूटिव लेके आना चाहती है और उसके लिए डिमांड करते हैं कितना पैसा मिलना चाहिए, तो पहले वो पार्लियामेंट से मंजूरी उसकी लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि वुमेन्स ऑफ इंडियन को हम इतना पैसा देना चाहते हैं ताकि वो एक इकोनॉमिकली में या पढ़ लिख सकें, तो उसके लिए पहले तो उनको पार्लियामेंट में बताना पड़ेगा कि 1000 करोड़ रुपये हमें चाहिए, ताकि हम एक पर्टिकुलर हमने स्कीम या पॉलिसी चुनी है उसको बूस्ट कर पाएँ। तो पार्लियामेंट विल गिव देयर एसेंट, एक तरह की वो हामी देंगे तभी जाके, और प्लस गवर्नमेंट को सारा कुछ बताना पड़ेगा कि ये पैसे हम हर स्टेट को इतना इतना पैसा दे रहे हैं और इसका ये रिजल्ट है। तो इससे फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी चेक होती है एग्जीक्यूटिव से। किससे चेक हो रही है? पार्लियामेंट कर रही है। अब नेक्स्ट फंक्शन हो गया रिप्रेजेंटेशन। हमें भी पता पार्लियामेंट में हर तरह के एमपी चुने जाते हैं, जो और सारे रिलीजन से बिलोंग करते हैं, जैसे मुस्लिम, सिख, प्लस वो हर एक डिफरेंट सेक्शन ऑफ इंडियन सोसाइटी से आ रहे हैं। जैसे छत्तीसगढ़ से भी आ रहे हैं, झारखंड से भी आ रहे हैं, पंजाब से भी आ रहे हैं, यूपी से भी आ रहे हैं। तो एक तरह की जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में वो डाइवर्स है। तो इसलिए कोई भी डिस्कशन होती है जो पार्लियामेंट में, तो सभी के अलग अलग व्यू पार्लियामेंट में मिलते हैं। तो इसलिए कोई भी लॉ आएगा या कोई भी कानून बना रहा है जो पार्लियामेंट, उसमें हर स्टेक होल्डर, हर बंदे की बात उस बिल में दर्शाती है हमें। डिबेटिंग फंक्शन है। पार्लियामेंट का काम एक तरह का डिबेट होता है, तो डिस्कशन होता है, जहाँ पे पार्लियामेंट बेसिकली एग्जीक्यूटिव से सवाल जवाब पूछती है कि आप कोई भी कानून लेके आ रहे हो, कैसे लेके आ रहे हो, और हमें बताओ पूरी अच्छी तरह से। तो डिबेट तो होता ही है पार्लियामेंट में। अब कॉन्स्टिट्यूएंट फंक्शन। अब पार्लियामेंट के पास ही पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को भी चेंज कर पाए, अमेंड कर पाए। सो 2 हाउस हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा और राज्यसभा, और दोनों पार्ट लेते हैं उस संविधान को चेंज करने के लिए। अब अगला फंक्शन आ गया इलेक्टोरल फंक्शन। इसका मतलब ये है कि पार्लियामेंट चुनाव कराने में भी हेल्प करती है। जैसे कि प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुना जाता है, ये पार्लियामेंट के जो मेंबर होते हैं वो ही वोट डालते हैं, और उनकी वोट से ही प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट चुना जाता है। जैसे राज्यसभा के मेंबर हो गए, लोकसभा के मेंबर हो गए, वो वोट डालेंगे, और जिस बंदे को वोटें सबसे ज़्यादा बड़े बनेंगी वो प्रेसिडेंट बन जाएगा या वाइस प्रेसिडेंट बन जाएगा। अब जुडिशियल फंक्शन कैसे होते हैं? जुडिशियल फंक्शन ऐसे हो गए, अगर प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है या जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के रिमूव करना है, तो वो पार्लियामेंट ही करेंगी। कोई रेजोल्यूशन आएगा, अगर लोकसभा और राज्यसभा उनको पास कर देती हैं 2/3 मेजोरिटी से, तो वो पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आर सेड टू बी रिमूव्ड। सो दिस इज़ द जुडिशियल फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। सो हमने देखा कि पार्लियामेंट के कितने ही फंक्शन हैं, तो ये फंक्शन अब सभी इसको याद कर लें अच्छी तरह से, एंड we will continue with the rest of the chapter in the next video. Thank you.